तो काफ़ी ट्विस्ट होगा. एंड जैसे वो सी वाली कैंडी में बहुत सारे फ्लेवर्स और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, सो दिस के वाला कैंडी हैव अ लॉट ऑफ ट्विस्ट, प्लॉटिंग, क्राइम, सिंस इट्स अ क्राइम स्टोरी, एंड a lot of drama. So are you ready for it? Yes. बहुत कम आवाज आई. Yes, yes. That's like my audience. पीछे से नहीं आ रही आवाज, आगे वाले वो बोल रहे हैं कि हमारी ज्यादा तेज आवाज आ रही है. चलो साथ में बोलो, साथ में बोलो. Come on guys, are you ready for it? बोलो बोलो. Come on. That's the spirit. Guys, we all belong to this film industry and we know how important, how difficult it is to make up this film. So let's cheer for them. And ट्रेलर से पहले हम आपको 3 सॉन्ग्स दिखाएंगे. एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक सेंचुअस सॉन्ग है और एक सॉन्ग है पार्टी नंबर टू पेप यू अप. उसके बाद हम आपको ट्रेलर दिखाएंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द फिल्म. व्हाट डू यू से? Okay, let's begin then. Come on, can we have the song? Yeah. Candy Twist the crime story. आपको ट्रेलर में कितने ट्विस्ट नजर आए, कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग नजर आई? अच्छा लगा देख के? किसको कड़क लगा? Very nice. Oh, that's a huge standee. और इतना बड़ा स्टैंडी देख के आई एम श्योर फ्रंट रो में जितने भी लोग बैठे बहुत खुशी होगी, स्पेशली इन दोनों को, बिकॉज इट्स देयर डेब्यू. या एक्साइटेड? और पीछे ले लो ना. Oh, it's a crime story, no? So all these things are allowed. हाँ, trailer launch पे सब allowed है, yeah. Okay. Yes, वो. Yeah, completely. फिल्म बनाई है, उन्हें यहाँ बुलाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं. सबसे पहले मैं उस इंसान को बुलाना चाहूँगी जिन्होंने डायरेक्शन में तो डेब्यू किया है, लेकिन एज एन एक्टर आपने उन्हें कम से कम 100 से ज़्यादा फिल्मों में देखा है. उन्होंने विलन बन के आप लोगों को डराया भी है और कॉमेडी करके बहुत हंसाया भी है. प्लीज़ पुट योर हैंड टुगेदर फॉर शिवा. सो ये डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, राइटर भी है और काफ़ी खुश हैं बिकॉज जब अपनी फिल्म का ट्रेलर बड़े पर्दे पर देखते हैं तो ये खुशी लाजमी है. बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती है पर सूरज का एक किरण नहीं दिखती. लेकिन आई एम लकी. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल नितिन मोदी, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म, who had a guts to make a film and to release the film as well. Then comes my friend Dilip Soni, who's distributing the film, and Lali ji. They are my very big support, and of course my cast and crew like Adi Rani, Akshay Kharodia, Divya Singh, Aarti, then my music directors Dinner Ash and Greg, and my writer M Salim. Everybody knows him. Salim bhai. Okay. Say hi to our audience there. And सबसे ज़्यादा आप लोग. मीडिया नहीं होती तो ना फिल्म बनती, ना आगे बढ़ती, ना लोगों में क्रेज़ बनता और ना हम अपने अरमान पूरे करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर इवेंट. And thank you so much for doing my job. I would want to call the producer of the film now. No, please stay here. I stay here? Please stay here. Yeah, I want to call the producer of the film. It's his And first guys, film. I need your help because this is my first film as a solo director, and I want you to do the best for me. And I'm Yay. sure you'll do for me. करेंगे ना सर आप लोग? I'll be always there for you. So please be there for me as well. Okay, please Nitin Modi ji. इनका प्यार and passion for cinema has made him debut as a producer in the industry. So please welcome him. And the man जिनकी वजह से हम इस बड़ी स्क्रीन पर, जो कि इसके पीछे है, बड़ी बड़ी फिल्में देख पाते हैं because he's the one who distribute the biggest of the films. He's been part of this industry for last 20 years and everyone knows him. Please put your hand together for Mr. Dilip Soni. And now come the star cast of the film.
Oh, dude, they are so excited. Lali ji, please. He is a part of the distribution. They are together. Indian talkies. Yes, Indian Talkies. Indian Talkies belongs to Dilip ji, and then comes Lali ji. And Lali ji was very helpful to get this film to Dilip ji. रास्ता मुझे उन्होंने दिखाया. Thank you very much, Lali ji. Okay, and now comes the actor. बहुत देर से बैठ के अपने बाल ठीक कर रहे हैं. अपना दुपट्टा ठीक कर रहे हैं. He's like so excited. Okay, now it's my turn. I should get ready. Come on, Akshay. Come on stage. Woo! Bravo. Akshay Kharodia, it's his debut film. Divya Singh. Come on, guys. तालियों की आवाज तो आती रहनी चाहिए. और परी चौधरी को भी आपने फिल्म में देखा. उन्होंने काफी फेस्टिवल फिल्म्स की हैं, पर आज इवेंट में नहीं आ पाई हैं. क्यों? आई थिंक अक्षय को पता है. अक्षय आने से पहले डिस्कस कर रहे थे. अक्षय कहाँ है? She is shooting today, and शूटिंग तो तुम भी कर रहे थे भाई. no, this is my first film, so I'm more excited about it. He is the reason. ओह रियली? मतलब ये फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ तक आ गए हैं. वाओ. हीरो ही विलन है. Yeah. हाँ. अच्छा, तो हम थोड़ी और पोल खोलते हैं इनका. आदि रानी जी, प्लीज कम ऑन स्टेज. आप ही बता रहे हैं सब कुछ. ये एक्टर भी है और शिवा के सबसे करीबी दोस्त भी है. इनकी जोड़ी को आपने कई बार देखा है. या द क्लोज बडीज. मैंने इनको मैंने बुलाया. शायद जब जन्म लिया तब अपने आँख खोल के माँ को नहीं देखा होगा. बम्बई आके जब आँख खोली तो इसको ही देखा था मैंने. तो मेरी बम्बई की माँ है ये. How sweet. मुझे लगा It's all twist. it's very twisted. थोड़ा और आगे बढ़े तो हम पहले आरती जी को बुला लेते हैं. गाइस प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर आरती जोशी. गुजराती में काफी थिएटर करती है ये, और हिंदी फिल्म भी इन्होंने भी हाँ हिंदी फिल्म. वाओ. और अब बड़े पर्दे पर भी देखा हमने इन्हें. हाँ, आप कुछ बता रहे थे. क्या बता रहा नहीं, इसने बोला ना पैदा होते ही मैंने माँ को नहीं देखा. मुंबई आकर के मतलब पैदा होते ही सीधा 21 साल का हो गया था क्या? नहीं, पैदा हो गया जब हम खोलते तो माँ ही नजर आती ना पहले. तो बम्बई में जब पहले पैर रखा तो एक मैंने खोला, जैसे बाहर जाते बोलते ना जय माता जी, तो मैंने यूं किया तब तक सामने खड़े थे. मैंने बोला वाह मेरी माँ मिल गई मुझे. मतलब फाइनली इसने मुझे लड़की ही बना दिया. मतलब पर्याय है. हाँ हाँ. एंड now I would like to call my music directors, both of them. प्लीज कैन वी हैव यू ऑन स्टेज. They are actors as well. दिनेर. हाँ, और आप इन्होंने देखा होगा, दिनेरो एंड ग्रेग. यस, इन्होंने गाना गाया है सुफिया गाना जो आपने देखा होगा, लंबे बाल वाले जो हैं. इनकी भी स्टोरी है. इन्होंने जब म्यूजिक दिया था फिल्म का तो ये शिवा जी को इतने पसंद आए कि इन्होंने इनसे एक्टिंग भी करवाई है. हाँ, इज अ गुड एक्टर. हाँ, और गाना तो हमने सुना, पर आपका एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं इससे पहले ये सिर्फ छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में ये पहले म्यूजिक डायरेक्टर है जो एक्टर भी हैं. दूसरे कोई है? नहीं ना? नहीं कोई नहीं. हाँ, तो ये इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई म्यूजिक. एंड आई वुड लाइक टू कॉल माय राइटर एम सलीम, सलीम बिकॉज जी. अगर वो स्क्रीन प्ले डायलॉग नहीं लिखता तो मैं क्या लाता इस फिल्मों के ऊपर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फ्रेंड मिस्टर सलीम गौर, जिन्होंने मेरी फिल्म पूरी बड़ौदा में शूटिंग करवाई. अगर नहीं होते तो शायद ये फिल्म वहाँ नहीं बना पाता. ही इज लाइक अ बैकबोन टू मी. थैंक यू सो मच सलीम भाई. आई थिंक Yeah, थ्रू. pretty much done. एंड एक लास्ट में हमारी एक लिरिक्स राइटर हैं जो एक तो आई नहीं, एक हैं. आप आइए दीपा जी, एंड विल फिनिश दिस. तो हमारी खत्म करें. और नीतू क्रांति आए हैं क्या? नीतू क्रांति, शी इज देयर? नो, शी इज नॉट देयर. एनीवे, थैंक यू वेरी मच. यू कैन टेक ओवर नाउ. Thank you so much. So this is the whole cast and crew. I will take the mic and we can have the photo up, guys.
Come on, guys, come closer and pose. Say cheese. दादा सर नीचे दादा साइड हो जाओ Yeah, done. कितना अच्छा होता है ना when you get mix of talent, writer भी, director भी, actor भी, music director भी, so जो अच्छी एक picture आती है ना, that's a perfect picture. Everyone is posing like a pro. Yeah. Okay, so now can we have the director, producer and star cast here, and बाकी सब आप लोग सीट ले सकते हैं, and we'll open the floor for the media. प्रोड्यूसर चाहिए ना प्रोड्यूसर हाँ हाँ. नहीं नहीं वो अभी तो शुरुआत हुई है. सवाल पूछने से पहले ये प्रण ले लेना कि ये फिल्म को कहीं कहीं कहाँ कोने कोने तक पहुँचाना है. बहुत अच्छा लगा. बेसिकली जितने भी एक्टर्स हैं वो सब मेरे दोस्त हैं एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स. स्पेशली एंड अदी इज़ लाइक अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और उस फिल्म में बहुत कमाल का रोल किया है एंड ही इज़ हाईलाइट ऑफ द फिल्म. हालांकि लड़का है लड़की ने तो काम किया ही बिकॉज फिल्म इज़ बेस्ड ऑन दिस बॉय एंड दिस गर्ल बट अडी इज़ ब्रिलियंट इन द फिल्म एंड इट वाज रियली डिफरेंट. एक कहते हैं ना कि डिफरेंट माहौल होता है. एज एन एक्टर मैं एक ही कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ बट एज अ डायरेक्टर आई कैन प्ले इनन्यूमरस कैरेक्टर्स. मतलब आई कैन प्ले द हीरोइन कैरेक्टर, हीरोज कैरेक्टर, विलन्स कैरेक्टर, फादर्स कैरेक्टर, टीचर्स कैरेक्टर. मतलब कोई उसकी कोई सीमा नहीं है. तो मुझे एक्टर बनने से ज़्यादा अभी मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टर पहले से बना तो आज तक मैंने कम से कम हज़ारों कैरेक्टर्स प्ले कर लिए होते हैं अलग अलग फिल्मों में. एक है मणि रत्नम, दैन द सेकंड वन इज़ मुकुल आनंद. एंड मेरा मानना है कि ये तो सिर्फ दे आर लाइक जीनियस हैं बट देर आर इवन न्यू डायरेक्टर्स जो आते हैं जो छोटे मोटे डायरेक्टर्स होते हैं या छोटी मोटी फिल्म वो भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो जीनियस बन के उसमें ही कमाल की टैलेंट है. न्यू कमर्स आते हैं ऐसी कोई चीज़ बना के जाता है, अरे यार ये तो पता ही नहीं था. सो आई यूज़ टू वर्क विथ ऑल द डायरेक्टर्स, चाहे वो ए ग्रेड फिल्म हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड कोई भी फिल्म हो, मैं अच्छी चीज़ें उनसे हासिल करता था बिकॉज मैंने एज ए डायरेक्टर कोई असिस्ट नहीं किया है. बट देन बिकॉज आई यूज़ टू सी ऑल दिस पीपल मेरा विजन बढ़ता गया एंड आई थिंक प्रैक्टिकली वो विजन काम आता है जो आप हमेशा सीखते हो, नॉट थियरिकली प्रैक्टिकली. हाँ, जब एक्टर बना था तभी सोचा था कि यार जब मैं फिल्म शूटिंग करता था, मैंने शूटिंग फॉर क़यामत से क़यामत तक, वो द फर्स्ट फिल्म ऑफ माइन विथ आमिर खान एंड मंसूर खान. So I used to watch them doing different shots and then discussing on the different issues. So मुझे अच्छा लगा क्या मज़ा आता होगा. तो आज मंसूर को मैंने पूछा एक बार, I said सर एज एन एक्टर तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं शॉट देके बैठ जाता हूँ, आपको क्या मज़ा आता है. सर कि दिस इज़ अ क्रिएटिव जो कीड़ा होता है ना उसको सेटिस्फाई करने वाली बात है. मतलब आई एम डायरेक्टिंग सो मेनी एक्टर्स एंड माई फिल्म पीपल आर गोइंग टू वेट फॉर इट कि यार एक डायरेक्टर फिल्म बनाने वाला है वो कैसी फिल्म बनाने वाला है, क्या होने वाला है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे एक डायरेक्टर बनूँ जो लोग आगे सोचे कि दिस मैन इज़ मेड अ फिल्म, इसमें कुछ ना कुछ बात होगी, तो यू मस्ट गो एंड वॉच द फिल्म. जी मैं रखने वाला हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं एंड आज का एक दो दिन में मैं यही बात कर रहा था सबसे बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट वन स्पेशल शो ऑन 25th ऑफ दिस मंथ. तो मैंने सोचा कि मैं सारे लोगों को जो अपने दोस्त हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, आई वॉन्ट टू मेक देम प्राउड बिकॉज जब मैंने ये सब लेआउट भेजा डिज़ाइन का, दे आर वेरी हैप्पी एंड सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू. तो आई वॉन्ट टू शो देम द फिल्म कि ये तो देखिए आप प्राउड तो फील कर रहे हो. वॉच द फिल्म एंड देन टेल मी इफ यू आर प्राउड ऑफ मी और नॉट. Through a common friend, I actually met Shiva, and like we were just discussing what we can do together and the things, and he narrated me the story, and the way he narrated the story, it actually appealed let's do this together, and that is where the entire thing started, and then we started off screening for the cast, for everything, and the team is here. इनको भी एक कमाल का किस्सा बताऊँ. इनको भी लोग मिल गए थे कि अरे यार फिल्म बनाई यूँ बेच दूंगा, यहाँ बेच दूंगा, यहाँ बेच दूंगा, ये इतना डालोगे इतना 25-30 लाख तो आपके जेब में आ जाएगा. उन्होंने वेरी गुड. तो मुझे आके बोला कि सर आप तो फिल्म बना के बोलते हो कि बस डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑडियंस कि पैसे आएगा कि नहीं आएगा, बट एक तो बोलता है कि मैं तो गारंटी देता हूँ कि यहाँ बेच के फिल्म. मैंने बोला एक काम करते हैं, 100 रुपये का हम स्टैम्प पेपर लेके जाते हैं और आप बोलो, मैं उसको बोलूँगा कि भाई देख ये स्टैम्प पेपर है, व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट कि इनको 25 लाख भी नहीं चाहिए, जो डाला वो डलवा दे वापस,
तो भी चलेगा। अरे क्या शिवा भाई, इंडस्ट्री में इतने सालों से आप मुझे ये सब बातें पूछते हो, तो मैंने बोला क्यों गलत बात बताता है इनको, है ना। तो इसलिए यार तुम तो मेरा काम खराब करने आ गए। मैंने काम खराब करने आ गया, एक इंसान को बचाने आया हो कि सच्चा बोलो कि भाई दिस इज़ अ गैम्बलिंग वर्ल्ड। आप 1 पैसा डालेंगे तो 1 करोड़ भी आएगा, 1 पैसा डालेंगे तो 0 भी आएगा। सो यू कांट वेट एंड कांट डिपेंड ऑन दिस इंडस्ट्री टू हैव मनी बैक। यू हैव टू सेटिस्फाई योर पैशन, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। सर हर चीज़ में बदलाव आना ज़रूरी, रिवोल्यूशन इज़ एवरीवेयर, चाहे वो ह्यूमन काइंड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो आई थिंक एवोल्यूशन बहुत अच्छा आया है, लॉट ऑफ थिंग हैज़ चेंज। और एक अच्छी बात यह है कि सब लोग अपने टोज पर है कि ये अच्छी बना के जाएगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, आई हैव टू मेक द बेटर फिल्म देन हिम। अपने आप से इंसान कंपटीशन करता है। तो आई थिंक द थिंग इज़ द वर्ल्ड इज चेंज, इंडस्ट्री इज चेंज, बट फॉर द बेटरमेंट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि वो चल गया। और आज के वक्त में बहुत ही वेरिड सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनती है, पहले इतना नहीं बनता था। पहले तो यही था कमीने तेरा खून पी जाऊँगा, और कमीने हम होते थे, हमारे खून पे हीरो आ जाते थे। सो दैट वाज द ओनली वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। आज तो कितनी अलग अलग चीज़ें बनती है, तो हमें अच्छा लगता है कि वी कैन वर्क ऑन अ वेरी सिचुएशन एंड वर्क। Hi. Thank you for all of you for coming here. And really, this is the first project of mine. And I just want to thank Shiva sir कि उनने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया। एंड ये भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है इस चीज़ की कि कैसे कास्टिंग हुई इसकी। सो आई थिंक सर के मुंह से ज़्यादा सुनेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। स्टोरी सुनाते रहेंगे ना तो धीरे धीरे मालूम पड़ा, धीरे धीरे खाली होता गया सब कुछ। तो काफ़ी इंटरटेनिंग हमारी स्टोरी थी। एंड सर ने मुझे कैरेक्टर के लिए चूज़ किया, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैम। एंड बाकी हमारे प्रोड्यूसर नितिन सर, एंड दे बोथ जस्ट सेलेक्टेड मी फॉर द फिल्म। एंड कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था। एंड रियली जब मैं छोटा था तब तो मुझे नहीं था कुछ ऐसा कि मैं कभी एक्टर बनूंगा या कुछ ऐसा था, बट कहीं ना कहीं एक अंदर था कि मुझे एक्ट करना है, और कहीं ना कहीं एक पैशन था कि मुझे करना है। और तो उस पैशन को मौका इन लोगों ने दिया मुझे आज इस पर्दे पे लाने पे। एंड या इट्स रियली अ क्रेजी थिंग कि बीइंग एन एक्टर इज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कि इतनी मीडिया को सामने आके फेस करना इज़ रियली डिफिकल्ट टास्क। But yeah, I'm enjoying this. This is my first time, so yeah, next time I'll be habitual of this. Ooh, I like that confidence. Good. you are confident. Very good. Pari. Hello everyone. Divya. Hello everyone. Thank you so much for coming here and support us. And आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? Can you just repeat? मैं कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी, कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहती थी। It's all of a sudden it happened, and जो भी मेरे रास्ते में आया, I opened my arms and accepted it with happiness. तो ये फिल्म all of a sudden, it was not like क्या हम शूट पे जाने वाले थे और 5 दिन पहले मेरी कास्टिंग हुई थी, just 5 days before the shooting. And तब मुझे लगा था okay, let's do it, because I know Shiva sir from last 4 years, almost 4 years, yes. एंड मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मतलब इतना अच्छा फिल्म बन के आएगा। मैंने बोला चलो एट लीस्ट इट्स बेटर सिटिंग एट होम, डू समथिंग, इट विल पॉलिश मी बीइंग एन एक्टर लाइक। तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेते हैं। बट अभी एग्जैक्टली जब मैं देख रही थी अपना सॉन्ग, आई वाज सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्लेन इट। सो थैंक यू शिवा सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you so much. Yes, I have done lots of theatre And now it's big screen. yeah, recently I have done PM Narendra Modi's film with Vivek Oberoi. But ये मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, स्पेशल विथ शिवा सर, क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट रहे हमेशा। उनको ऐसे विलन के दौर पे देखना भी, मतलब उनकी फिल्म मैंने कभी नहीं छोड़ी थी। बट अब एक बार ऐसे जैसे दिव्या ने बोला कि ऑल ऑफ सडन आई थिंक सबकी कास्टिंग हुई है 5-6 दिन पहले ही, जब वो ऑलरेडी सेट पर पहुंच चुके थे आई थिंक, है ना सर। सेट पर पहुंचने के बाद फ़ोन आ रहा है कि आरती भी हमारी ये फिल्म चल रही है, ये है। आई थिंक मुझे याद नहीं कि मैंने उनको पूरा डिटेल भी पूछा होगा कि सर मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़े वही थे कि हाँ शिवा सर है, दैट इज़ बेस्ट थिंग। और जाने के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर मैंने प्ले किया, शायद एक ट्विस्ट दिया है, तो बहुत मज़े किए हम सब ने, और बहुत एन्जॉय के साथ हमें विदाउट एनी स्ट्रेस बहुत अच्छे से शूट किया कम्प्लीटली। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा 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 बेस्ट रहा। थैंक यू। स्ट्रेस तो बहुत था स्ट्रेस बहुत था। शिवा सर से बहुत डांट खाई है मैंने, बहुत डांट खाई है।
ये ना कमाल का किस्सा, हम शूटिंग करने गए तो वहाँ पर ये लोग अपना स्क्रीन प्ले तो जानते ही थे, लेकिन जिस तरह मैं शॉट लेता था तो सारे लोग अंदर ही बात करते हैं, क्या शॉट ले रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है ना। और मेरे दोस्त आदि आके बोला, शिवा तू शॉट्स तो कमाल के ले रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, लेकिन तू बना क्या रहा है? मैंने बोला कोई नहीं जानता, कैमरामैन भी पूछता था सर कैमरा कहाँ रखो, मुझे नहीं मालूम कहाँ रखना है। तो ऐसे तू कैमरा यहाँ रखो, इधर रखो, तो बस सब ब्लाइंड फोल्डली सब काम कर रहे थे, बट आई न्यू कि व्हाट आई एम मेकिंग इट। एंड अल्टीमेटली मैंने बोला जब फिल्म बन के आ जाएगी तब आप सब देखना, अगर किसी की कोई कंप्लेन है तो मुझे बताना। एंड गॉड ब्लेसिंग्स के हिसाब से कि जिन्होंने फिल्म देखी जब एक ट्रायल शो के हिसाब से, एंड एवरीबडी केम आउट विद A big smile. big smile and I was so relaxed. So That's it the happens. best thing. So इसलिए कहते हैं ना कभी किसी को underestimate मत करो. Till the project comes out, till the result comes out, just keep quiet and do your job. So I used to tell everybody like that. Anyway. एज एन एक्टर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, और एज ए डायरेक्टर भी हम लोगों ने एक साथ में काम किया हुआ एक फिल्म में, तो मुझे इस पर कॉन्फिडेंस पूरा था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना अच्छा काम कर जाएगा। तो स्क्रिप्ट के बारे में मैंने उसको कभी पूछा नहीं, बट उसने मुझे कहानी फिर भी सुनाई थी कि ऐसी ऐसी कहानी है, एम सलीम लिख रहे हैं और हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। मतलब करो भैया, और जब ऐसे ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेना। तो फिर बुला लिया भाई ने, और ऐसा रोल दे दिया कि मुझे ऐसा लगा कि बाप रे बाप, फिल्म का अमिताभ बच्चन हूँ मैं या शाहरुख खान हूँ मैं। पर कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट व्हाटएवर आई एम देयर एज एन एक्टर, दैट्स इट। हाय गाइस, सो एक्टर वाली बात तो मैं बाद में बताऊंगा, बट गाने वाला जो एक्सपीरियंस था कि हाउ काफ़ी बारी शिवा भैया एंड मैं लाइक वी हंग आउट सो मेनी टाइम्स एंड ओवर एंड ओवर काफ़ी लोगों को स्टोरीज बताते रहते थे फ़ोन पे, और मुझे भी वही। तो मैं सोचता था इस इंसान के अंदर कितने पेशेंस हैं, और मतलब और क्योंकि हर एक अगर इफ़ यूल गेट अ फोन कॉल लाइक एंड यूल गेट 500 फोन कॉल्स एंड यू टॉक डिस्कसिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर, सो इमेजिन लाइक व्हाट काइंड ऑफ मेंटल प्रेजेंस यू नीड इन योर माइंड कि यार मुझे वही बात दोबारा, एंड आई सी दैट आई वाज लर्निंग। सो ही टोल्ड मी कि यार मुझे ना इस गाने मुझे एक गाना सॉफ्ट नंबर पे चाहिए, मुझे एक गाना ऐसा चाहिए, एंड एक कमाल की बात है कि जो आगोश जो गाना है, सो भैया मेरे पास सुबह के टाइम पे मी एंड ग्रेग वाज लाइक प्लानिंग टू वर्क एंड ही हैज़ कम अप विद सम लिरिक्स एंड ही इज़ लाइक यार ये लिरिक्स हैं, और सुबह दोपहर को हमारी राइटर आने वाली है एंड विल सिट डाउन एंड स्टफ। सो 5 बजे का हमारा टाइम था, वी टू मीट हिम, एंड 5 o'clock बाय द टाइम ही केम वी मेड द ट्रैक ऑलरेडी, एंड अंतरा भी कर दिया था उसका, लेकिन सेकेंड अंतरा नहीं किया। तो जब आए हैं भैया अंदर घर पे एंड ही इज़ लाइक यू नो यार लेट्स वर्क ऑन द लिरिक्स। I said, no, the track is already ready. Like, listen to it. So he listened to it and he was like, I don't know. He'll tell you about it. But for me, acting as inspector in this film and working with Adi Bhaiya in it, it makes me. Yeah, he changed the spot actually. So working with him was like amazing, and because like I grew up watching their films and it was always an ideal, and they're very good friends of mine. They're my big brothers. So. पूछ लिया करता था आदि भैया से हर एक शॉट के टाइम पे कि यार भैया बता देना, बड़ा नर्वस सा फील हो रहा है अंदर, अब पता नहीं यार शिवा भैया नाराज़ ना हो जाए कहीं शॉट पे कि तूने क्या कर दिया ये। तो मेरे को उससे थोड़ा सा घबराहट रहती थी। गानों के लिए तो दैट्स इट्स फाइन बिकॉज ही वाज डायरेक्टिंग इट, आई वाज देयर एंड आई वॉच्ड द एंटायर सॉन्ग्स एंड स्टफ, बट एक्टिंग में मेरे को थोड़ा सा हिच था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी भैया से, भैया एक्टर बना तो रहे हो, हमें डायलॉग मत देना ज़्यादा, क्योंकि नहीं बोल पाएंगे ज़्यादा, हम डायलॉग वाला नहीं हो पाएंगे। तो बोले नहीं तेरे को मैं साइलेंट पिक्चर वाली एक्टिंग नहीं दूंगा, तो कुछ बोलेगा बीच में। so that was my experience with Candid Twist, the crime story with Shiva Rindhani, Adi Rani and all the crew. I'm really thankful that I'm here with you guys. Much respect and love to all of you. I just want to say thank you to Shiva Bhaiya and Sir Adi and our director Dinner Ash.
this was a great experience for us, guys. And I don't want to say much, but we want to rock this song together. Go and get this song, listen to it, and rock and roll, guys! And we would love to listen to you guys, and this music is going to reach out to a lot of masses, and I hope you guys will support us with this music. And I wish everybody all the best of luck, and let this music rock on! Woo! Hey. Come on, 3 cheers for. Thank you so Come on, much. guys, 3 cheers for your film. Candy Twist the crime story. Please इसको चारों तरफ बहा दो. और there'll be an obligation to me, and I'll be always there for you people whenever you need me. Inshallah. देखिए अगर सारा कुछ मैं अभी बता दूंगी तो लाइक क्लाइमेक्स रिवील हो जाएगा. सो बेटर लाइक मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी, यू शुड कम एंड वॉच इट. एंड बाकी आई एम लुकिंग गॉर्जियस, आई एम लुकिंग सेक्सी, दैट्स इनफ. एक्चुअली ये कैरेक्टर जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ, इट्स द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर, बट द फिल्म में जो ट्विस्ट है ना, दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय व्हेन यू कम टू वॉच द फिल्म. तो मैं चाहता हूँ पहले आप फिल्म देखने आए, देन यू सी द कैरेक्टर एंड देन यू रियलाइज़ कि क्या उसका आपके लिए ओपिनियन है. सो यू बट ये जितना सीधा दिख रहा है ना, वैसा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है फिल्म में, इसका उल्टा है. सो आई थिंक आपने सॉन्ग देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि शी इज़ टू गुड. थैंक यू सो मच अक्षय. सो या एनीथिंग एल्स यू वांट. एक्चुअली शिवा सर से तो बहुत कुछ सीखने को इतना मिला है. प्रेशर मैं नहीं ले सकती है, ट्रस्ट मी. मेरा ऐसे ना ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा. प्रेशर का रिजल्ट बहुत अच्छा है. इतना प्रेशर लिया उन्होंने. आई सीरियसली मतलब सर मेरे को सिखा दो ये. सिखा दो कैसे करते हो आप. मैं बताना चाहूँगा ट्विस्ट बनाना है ना, समथिंग स्पेशल, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है. और उन्होंने ऐसी चीजें स्टोरी में जो ट्विस्ट था उसके साथ साथ हमें भी ऐसा ट्विस्ट करके बट सीरियसली सबसे इम्पॉर्टेंट था कि सर का जो बनाने का डेडिकेशन था. जब सर पहली बार हमें स्क्रिप्ट नरेशन कर रहे थे, तो दैट वाज द मोमेंट कि सर का जो बनाने का पैशन था ना, तो हमें ये था कि एक्चुअली हम सर के पहले से बचपन से फिल्म से देखते आए, तो एक अंदर था एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट थी, बट एज ए एक्टर थी. बट एज ए डायरेक्टर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे. एंड सबसे ज़्यादा मैं कंफ्यूज था क्योंकि मैं ऑलरेडी एज अ फिल्म मेकर वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन था, पता नहीं कैसे बनेगा. बट जब सर ने नरेशन दिया, एक एक कैरेक्टर को अलग अलग पूरा स्टोरी इजी ब्रीफ था, एंड वो बनाने का जो पैशन था वो एक मज़ा आ रहा था सुनने में. तो हमें ये था कि अगर हम सर की क्रिएशन का पार्ट हो सके तो दैट विल बी लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर अस, एंड दैट हैपेंड टुडे. दैट्स changed all our life today, and like we are so excited to watch the film and see the reviews of you guys. पहली बात like in this industry people are very rare people, like 1% people are there who actually launch some fresher new face. I'm thankful to him. He gave me opportunity to show me and show me what I have. So I'm like really like nepotism को break करके he's the one जो लेके आ रहे हैं new faces. They try like giving us a chance. So that's the big deal. Right now big banners, everyone is not giving chance to fresh new faces. So he's the one who is giving it. So that's called the daring man. Right now people don't have daring. They have money, they have big scripts, but they don't have that guts to do that. So he have a guts. He proved it, and he's releasing his film, and we all are like super excited about it. And I'm sure film And is we going need to do your well. support because you are guys जिनने बड़े बड़े stars बनाए, and हम लोगों का करियर आप लोगों के हाथ में है. अब now हम सबका करियर, हम सबका करियर आप लोगों के हाथ में है. आप लोगों के हाथ में है. So अब देखते हैं कि हम आप कहाँ तक हैं, and हम जल्दी वापस मिलने वाले हैं, वैसे ही बहुत जल्दी. मेरे से पूछो ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बोल मैंने किया है इसलिए नहीं किया है. बट ये जो मेरे साथ हुआ है मतलब होता है मेरे ख्याल से हर लड़की को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है डूइंग दिस सीन इन फ्रंट ऑफ टू मैनी पीपल. लाइक पूरा क्रू है एंड उसके सामने आपको ऐसा सीन करना है. बट शिवा सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया. मतलब आई वॉज वेयरिंग बिकनी एंड आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम वेयरिंग बिकनी. आई वॉज लाइक फुल क्लोथ. यू नो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पूरा कपड़ा पहनी हुई हूँ. मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम इन बिकनी. नॉट इवन शिवा सर, द होल क्रू, they supported me in that
moment, and I'm really And I was the glad most, did it. मैं सबसे ज़्यादा Grateful डरा to हुआ, them, I'm grateful to सबसे them. ज़्यादा डरा हुआ मैं था because उल्टा मैंने इसको कन्विंस किया है. and she was like अक्षय कुछ नहीं होगा, don't worry, I'm there for you. मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है, relax. And she was like तुम दोनों ना डिस्कस कर लो, तुम दोनों कैसे करना है मुझे. उल्टा शिवा सर ने हमें अकेले छोड़ दिया कि तुम लोग अपना केमिस्ट्री. Because it's build up really करो. difficult, you know, कि लोगों को बहुत easy लगता है to do this kind of things. But the thing is, it's really difficult. But हमें ऐसा feel नहीं होने दिया सर ने. हम सेट पे पूरी टीम हर कोई था and we were just, you know, enjoying. It's kind of like it become a family for us. We are enjoying with our music director, producer. So we are like हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि यू नो कि हम किसी और के सामने या हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं चीज़ों को करने के लिए. तो उसमें हम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे. मैं थोड़ा कॉन्शियस था बिकॉज मुझे तो लाइक ऑन स्क्रीन ये पहली बार No, कुछ था. because he is shy type. पहली बार मेरा भी था. मेरा कोई 100 टाइम नहीं था, but he is very shy type. So मेरे को पता कितनी मेहनत कोई करनी भी पड़ी tough, इसको ओपन कितना अप भी करने tough के scene लिए. क्यों ना हो, सर ने इतने अच्छे से उसे डिस्क्राइब किया है. सो हमने बहुत अच्छे से हमें कुछ एक सीन है जैसे कुछ हमने जहाँ पे कैंडी ट्विस्ट दिया है ज़बरदस्त वाला, वो करते हुए हम लोग सीरियसली कांप रहे थे कि हम लोग कैसे करें. बट वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्ले किया. बट आप चुप जब रहो, देखेंगे, चुप मैं नहीं रहो. बोल रही हूँ, कोई भी टफ सीन नहीं, Guys, कोई भी 27 टफ तारीख सीन को बहुत देखना, अच्छे अभी से से नहीं describe बताने किया. नहीं, मैं बोल रही हूँ जस्ट कोई भी टफ सीन हो कितना भी हो, बट उन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हमने बहुत अच्छे से भी प्ले कर पाए. थैंक यू. थैंक यू. इम्पॉर्टेंट जो चीज़ एक एक्टर के लिए होता है वो डेब्यू होता है एंड वो कैसे मिलता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. बिकॉज लोगों को क्या होता है कि ऑन स्क्रीन तो आप आ गए मगर चांस कैसे मिला वो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है. तो ये हमारी कैंडी ट्विस्ट में ये भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि सर ने मुझे कैसे मिले और सर ने मुझे कैसे लॉक किया. सो दैट्स द वेरी बिग स्टोरी. बड़ा परेशान था कास्ट करने क्योंकि मेरा जो लड़का चाहिए मुझे वो बहुत ही क्यूट, गुड लुकिंग और आम जितने लड़के की शक्ल दिखती है उससे कुछ अलग चाहिए मुझे. और मैं बहुत सारे लड़के देखे हैं और उनसे मैंने थोड़ा परफॉर्मेंस भी करवाया. आई वॉज़न्ट हैप्पी कि मुझे वो चाहिए था कि जो मतलब इतना भोला कि मतलब कहते हैं ना कि हुस्न के सामने ख़त्म हो जाए, है ना. तो वो भोलापन चाहिए था मुझे. तो मैं FTC सुनील शेट्टी के वहाँ मैंने कास्टिंग की थी. तो उनके ग्रुप वाले बैठे थे तो मैंने बोला यार कोई लड़का नहीं मिल रहा है, 100 200 300 लड़के देखने हैं क्या ऐसे. सर आज सुबह एक लड़के ने एक फ़ोटो भेजी है, जरा देखा. मैंने बोला अभी क्या भेजी यही होगी. देखा यही चाहिए सर. एक्टिंग मैंने एक्टिंग नहीं पूछनी है, मुझे अगर शक्ल मिल गई मेरा 50% मेरा काम हो गया. एक्टिंग तो एज एन एक्टर आई नो वी कैन मेक देम एक्ट, वर्कशॉप देंगे कुछ देंगे, बट ये फेस मुझे नहीं मिल रहा था. तो आई गॉट दिस फेस एंड लकीली हूएवर सीन द फिल्म दे हैव लाइक्ड हिम. जो इवन दो एडिट करता है या जो 5.1 मिक्सिंग कर रहा था बोले सर आपका हीरो बहुत खूबसूरत है, डिफरेंट फेस वाला है. तो आई सेड आई वर्कड हार्ड ऑन दिस. तो बेसिकली सारे जितने कैरेक्टर्स हैं ना उन सब के साथ मेरा ऐसा ही हुआ है. लास्ट मोमेंट पे तब्दीली हुई और ये लोग आ गए अंदर. एक ही था मेरा पिलर, वो है आदि ईरानी. मतलब वो है ना, हाँ वो है ना, तो फिल्म निकल जाएगी मेरी. बहुत चैलेंजिंग होता है बट माई दिस किड्स आर वेरी गुड. उन्होंने मैं बहुत गुस्से हो रहा था बिकॉज आई हैड कंस्ट्रेंट टाइमिंग कि मुझे इतने दिन में फिल्म कंप्लीट करनी. प्रोड्यूसर ने एक जगह पे डंडा डाल दिया था, इसके ऊपर जाओगे फिल्म बंद. सो मेरे सर पे तलवार थी एंड ही हैड गिवन मी लिबरल हैंड कि यहाँ तक अब जो भी करना है करो बट आई वांट दिस फिल्म इनटू दिस ब्रैकेट. तो मैंने बहुत पूरी मेहनत की, पूरा स्क्रिप्टिंग किया. ये क्या मैंने यहाँ तक ये हो गया कि जितने भी एक्टर्स हैं, मेरा कैमरामैन, मेरे लाइटमैन, मेरे स्पॉट बॉय, इन सबको स्क्रिप्ट याद हो गई थी. तो मैं कहीं भूलता नहीं शॉट, अरे सर वो शॉट रह गया आपका, वो जो क्लोज लेना था. तेरे को इतनी स्क्रिप्ट आपने पढ़ के सुना दी है सबको स्क्रिप्ट याद है. तो एंड दूसरी बात ये थी कि मेरे शूटिंग में काफ़ी मस्ती होती रहती है. एंड सबसे बड़ा मज़ा क्या आदि ईरानी. मतलब कहीं भी होगा वो माहौल कभी ठंडा नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा. सो मेरे सारे एक्टर्स और जितने भी लोग थे यूज्ड टू बी हैप्पी विथ हिम एंड यूज्ड टू बी मैड विथ देम. सो आई वाज हैप्पी दैट दे वर हैप्पी एंड उनका चार्ज रहता था काम करने में एंड आई वाज इन माय वर्क. सो बैलेंस कर लिया उसने. इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस and I wouldn't mind to act with newcomers again and again provided they come on time and they work hard. The dedication. आजकल के लड़के जो हैं वो बहुत ही 5 बजे बोलो तो 6 बजे पहुँचते, 6 बजे बोलो 7 बजे पहुँचते. Guys, I will tell you one thing. आपको इंडस्ट्री में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है and dedicate yourself to this talent
आपको कोई रोक नहीं सकता. मुझे किसी ने रोका नहीं ना, बिकॉज ऑफ दैट. थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक म्यूज़िक इसमें जो जो बनाया गया है वो सिचुएशनल म्यूज़िक क्रिएट किया गया है फिल्म के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से. सो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. एंड हम लोगों ने बॉम्बे में भी रिकॉर्ड किया, कुछ लिरिक्स हमने गोवा में भी करे, दिल्ली में भी करा. सो वी ट्रैवल्ड अ लॉट among us because we are also traveling musicians. We perform also. So getting to the film project is like was nice and exciting also. Plus we wanted to give our 100% on the lyrics, music, and also the whole structure of the tracks and composition. So हमने काफ़ी मेहनत करी and we worked really hard, and we are very much honored and you know to be here. Greg? Anything you would like to add? I think yeah, it's been amazing. The journey's been really amazing, and yeah, there were a lot of things that came up, you know. But while we were doing the song and Yeah. stuff, so a lot of ideas in between, days, nights, overnights. So it was a non-stop affair. Nights A lot of after changes nights. also, like last minute changes happen. Last then minute changes and all that so stuff. Yeah. then you rectify those things and then Oh, and then I'll be, it's 3 o'clock, man. Hey, Greg. So, calls, hey, Greg, 3 o'clock, change that part. Get up, wake up. Like, so I was, this is what we got to do sometimes. So it all happens, while everybody's sleeping. So that's when we work, actually. So create. So that's when you can create and stuff like this. No one to disturb you, no bells, no phone calls, all that stuff. So you can put your heart and soul into what you're doing, and creation comes when you dedicate your mind and your dedicate soul your soul. towards it. So we worked around on and off like 2.5 months to prepare the entire structure of the tracks, select artist, lyrics, and the type of lyrics that we want. And again, like I said, के बीच में हमारे काफ़ी changes हो गए थे tracks में. So we made that, and yeah, so the great journey, and the result was great and came out really good, and I hope you guys like it. This is our first project, and we have other projects also lined up after Candy Twist, the crime story. It's become a platform for us, and a lot of people liked our music. और उसके बाद we got a chance from other films to which they want us to make music for them, and this is a great life opportunity. I must thank Shiva Bhaiya that he thought that we are capable of delivering him the tracks and also what he wants. And sure, mehnat, there's a lot of mehnat in everything. Like you have to work hard if you want to see the good results. Thank you, sir. Thank you, sir. So, thank you. Shiva sir, fully dedicated, very hardworking, non-stop, continuously, like उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, movie. Whenever we used to discuss, like it used to be long discussions, and like very hardworking guy, very passionate. बहुत हार्ड वर्क गई है इस फिल्म को बनाने के लिए. Please all welcome to see the movie. Okay, sir. Thank you so much.